My topic is to talk about a few questions about Azadari. Why do we do Azadari, Majlis of Imam Hussain al-Islam? Who is Hussain, son of Imam Ali? Why do we need to know about him? Why is it important to know about the Battle of Karbala? Why is it important to know about it today? We do Azadari Majlis like this with the lectures to commemorate the martyrdom of our third Imam Hussain al-Islam, son of Imam Ali al-Islam, in Karbala on 10th Muharram in 680 AD, and revise what happened, what values he stood for, to take lessons from it. Remembrance of Karbala is revival, refreshing of true Islam, knowing and recognizing the true Islamic values. There are people who lose the human value but still use the name of Islam, claiming to be Muslims, and misrepresent its values and damage Islam's image by killing innocent people, demolishing mosques, churches, and shrines. This is the same reason we remember Karbala and Imam Hussain al-Islam every year to revise ourselves how Imam Hussain al-Islam helped us to identify between true Islam and fake Islam. The army of Yazid who claimed to be Muslims, but they were oppressive, killing people, prohibiting water on women and children, and taking them as captives. Yazid and his army followers did not spare the life of 6-month-old baby Ali Asghar and killed him with the arrow when Imam Hussain al-Islam was asking for water. Hence, we get identification that they had false claim of being Muslims, but lost even the humanity in them, and they were not respecting human values. So, one cannot be a Muslim without human values, truth, justice, and respect for others. Therefore, it is important to know about the Battle of Karbala and what happened with Imam Hussain al-Islam in this battle to differentiate between true Islamic values and false claim in today's world also. Islam is alive due to Imam Hussain al-Islam's sacrifice. Namaz is saved with his prayers he did while arrows were shot at him. Hajj and sanctity of Kaaba is saved by him because he left Mecca while people were making plans to attack him during Hajj. Sajda, prostration, has remained with his last sajda, in which he was martyred. Recitation of Holy Quran is saved by him reciting verses of Quran when his head was on the spear. Hence, Imam Hussain al-Islam Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hence, Imam Hussain al-Islam is a significant historical personality not only for Muslims but for all people because he took a stand for truth, justice, and human dignity and sacrificed his life, family members to save the human values. He is the savior of humanity. Responsibilities of Azadari. We do Azadari to keep the message of Imam Hussain alive, continue his mission to recognize, differentiate between the true and real and complete Islam upon false claim. Army of Yazid has those who recite Namaz and Quran, but they were not only misrepresenting Islamic values, but also damaging the image of Islam. So Imam Hussain al-Islam taught in Karbala to recognize true Islam. Similarly, the violent people who claim to be Muslims, but are killing women and children in Syria, Iraq, and other places, neither representing Islamic values nor human values, and damaging the image of Islam. To show our support that we are Hussaini, followers of peaceful human and Islamic values demonstrated by Imam Hussain al-Islam,
and we are against injustice and will help the oppressed. Mazlum. We are ambassadors of the mission of Imam Hussain alayhi salam. As Azadar, we try in our capacity to revive ourselves and present the same values to everyone. Help the Muslim and do not help the injustice by tongue, talking or promoting. Our actions by helping them and by present with evildoers. We have to make sure message of Imam Hussain is alive and spread to everyone. Like join Who is Hussain campaign. Work for the mission of Imam Hussain alayhi salam and do not hurt others. Do not lie or cheat friends and colleagues. Ethics of Azadari. Join Majlis with wuzu, sit quietly and listen to the lecture or reciter with concentration. Mother of Imam Hussain alayhi salam, Bibi Fatima will be present in Majlis and watch us, so we should not play, laugh or joke, because we are commemorating for him. We should try for his Messiah. Difficulties Imam Hussain alayhi salam has faced, and Bibi Fatima will do dua and Allah will give sawab. If we are unable to cry, we should sit quietly with a sad face as we join any mourning for someone's death. Pray for the early reappearance, zuhur, of our 12th Imam, Imam Zamana alayhi salam. Salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. ज़कीर भाई किधर गए? दाद देने वाले सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक दफा फिर सलवात पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ए दश्ते करबला तेरा दिल क्यों न फट गया। ए दश्ते करबला तेरा दिल क्यों न फट गया। कासम सा गुल बदन तेरे पहलू में कट गया। पानी को तशकनी से मिलाने के वास्ते, पानी को तशकनी से मिलाने के वास्ते दरिया और रेगजार में अब्बास बट गया। असगर के लब दिखाई दिए और दफातन, असगर के लब दिखाई दिए और दफातन आँखों की पुतलियों से समुंदर लिपट गया। कसरे यजीद गाजी के घोड़े के पाँव की, कसरे यजीद गाजी के घोड़े के पाँव की मिट्टी के फैलते हुए जरों में बट गया। वाह 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 सुभान अल्लाह। फिर से पढ़ लेंगे मिस्र। कसरे यजीद गाजी के घोड़े के पाँव की, कसरे यजीद गाजी के घोड़े के पाँव की मिट्टी के फैलते हुए जरों में बट गया। इब्ने अली के खून का एजाज है कि खुद, इब्ने अली के खून का एजाज है कि खुद 6 माह का असीर भी मकसद पे डट गया। आशूर ढल चुका है तो अब ढूंढते फिरो, आशूर ढल चुका है तो अब ढूंढते फिरो। था कारवां जिधर का उधर को पलट गया। ये रंग मौजज़ा है दवाए बतूल का, ये रंग मौजज़ा है दवाए बतूल का। हुर एक पल में जंग की बाजी उलट गया। असगरो वकार असमत दीन का है हर असगर वकार असमत दीन का है पहरेदार। असगर वकार असमत दीन का है पहरेदार। हर मल जहां भड़क भर की कसाफत से अट गया। हरमल जहां भर की कसाफत से अट गया। है कोई जिसकी मश्क में दरिया है आज भी, है कोई जिसकी मश्क में दरिया है आज भी। था कौन जिसके दिल में समुंदर सिमट गया।
सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत खूब, वेरी नाइस। सेट करो, सेट कर एक ऊपर रखो। मर्सिये के चंद बंद माशाल्लाह। अली तू उधर रख दे उस साइड, इधर से इधर से। चूँकि शब आशूर का मौका है तो वैसे ही आज मसाइब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के होते हैं, तो इस मरसिये में आखिर में मसाइब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब कट गए हफ्ताद दो तन राह खुदा में, तन्हा रहे शाहे शुहदा दश्त बला में, ताकत न रही जिसमें इमामे दो सरा में, ओ कोई न रहा शेख अजीजो रफ़क़ा में। सरकार की रौनक थी न दरबार था बाकी, लुटने को हरम मरने को सरदार था बाकी। फरमाते थे हाथों पर लिए लाशे असगर, मकबूल हो ए बार खुदा फिदिये अहकर। किस मुंह से तेरा शुक्र करूं ए मेरे दावर, तूने मेरे असगर को दिया रुतबे अकबर। और जा अपनी मेरे शियों के बच्चों पर फिदा की, जा अपनी मेरे शियों के बच्चों पर फिदा की। शशमाह पर बिल्कुल है ये तायीद खुदा की। ओ गम का मुझे गम है न खुशी मुझको खुशी की, तू सर पर है परवाह नहीं बंदे को किसी की। हाँ एक ये हाजत है हुसैन इब्ने अली की, उस सर नंगे न देखूं मैं नवासी को नबी की। बेपर्दा वो जब हो तो मैं पैबंदे जमी हूं, और यूं तेरी मर्जी हो तो बाहर भी नहीं हूं। और लश्कर दिया कुनबा दिया घर भी दिया तूने, सरदार भी तूने किया सर भी दिया तूने। ओ हम शक्ले पैगंबर सा पिसर भी दिया तूने, ये हौसला ये दिल ये जिगर भी दिया तूने। क्या फख्र जोर प्यारों को राहे हक में दिया है, तेरी ही इनायत को फिदा तुझ पे किया है। तेरी ही इनायत को फिदा तुझ पे किया है। और मुझ में थी ये कुदरत के भरे घर को लुटाता। वाह कत्ल हूं अकबर इधर असगर को मैं लाता, तड़पे ये मेरे हाथों पर मैं लब न हिलाता। और बाजू हो जुदा हाथ न उम्मत पर उठाता, यूं खुश कोई हंगामे तबाही नहीं होता, बंदे से ये बेफजल इलाही नहीं होता। ओ उम्मत ने भुलाया है मुझे तू न भुलाना, तू पाक है दुनिया से मुझे पाक उठाना। उस सब छोड़ के तन्हा हुए जन्नत को रवाना, ऐ बार खुदा कब्र की वहशत से बचाना। और जब गोरे गरीबा का अंधेरा नजर आए, हर सिमत को जलवा मुझे तेरा नजर आए। काफी दरे दौलत है तेरा घर नहीं दरकार, तुझसे है सरोकार मुझे सर नहीं दरकार। तकिया है तेरे फजल पा बिस्तर नहीं दरकार, इमदाद तेरी चाहिए लश्कर नहीं दरकार। ओ आसान मेरे शियों पा सख्ती अजल हो, आसान मेरे शियों पा सख्ती अजल हो। जो हो ना हो वो मुझ पर हो मुहिब्बों के बदल हो, जो हो ना हो मुझ पर हो मुहिब्बों के बदल हो। और नागाह निदा पर्दे कुदरत से आई,
शाबाश के तस्लीम और रजा खूब दिखाई, बंदे तुझे मैंने किया मुख्तार खुदाई। ओ खासान खुदा करते हैं यूं वादा वफाई, प्यारे भी मुसाहिब भी फिदा कर दिए तूने, इकरार था एक सर का 72 दिए तूने, इकरार था एक सर का 72 दिए तूने, बस बस के खुदा अब तेरा शर्माता है शब्बीर, क्यों मेरे हुजूर आने में घबराता है शब्बीर, अरे तालिब हूं मैं जिस हदिये का तू लाता है शब्बीर, बंदों का हमें उज्र पसंद आता है शब्बीर, तू उज्र का तोहफा मेरी दरगाह को समझा, मैं रुतबा तेरा समझा तू अल्लाह को समझा, मैं रुतबा तेरा समझा तू अल्लाह को समझा, हजरत ने सुने हुक्म इलाही जो ये सारे, ओ बेसाख्ता मुड़कर सुए कुफार पुकारे, कातिल है कहाँ आए मेरे सर को उतारे, देवड़ी से बहन बोली मैं कुर्बान तुम्हारे, ओ सैदानिया दुख में किसे चिल्लाएंगी भाई, सैदानिया दुख में किसे चिल्लाएंगी भाई, अरे बिन माँ किए बहने तेरी लुट जाएंगी भाई, वहां जालिमों ने मोर्चे एक दफा उठाए, अरे बादल की तरह फातिमा के चांद पछाए, यूं तीर जफा मारे के सीने में दराए, नेज़े जो लगाए तो कलेजे में लगाए, अरे जख्मों से तो खूने बदने शाह था जारी, और मुंह से तवक्कल तो अल्लाह था जारी, और मुंह से तवक्कल तो अल्लाह था जारी, और बरछी कभी पहलू पर चली और कभी शमशीर, पत्थर कभी माथे पर लगा और कभी तीर, संभला न गया हो गए गश हजरत शब्बीर, और सीने जख्मी पर चढ़ा जालिम बेपीर, अरे सर पीट के मंदिर फरिश्तों ने गिरा दी, जालिम ने छुरी हल्क पा सैयद के चला दी, जालिम ने छुरी हल्क पा सैयद के चला दी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, खातिमिन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन, अबुल कासिम मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन, ला सियमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्दीन, व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद, फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद-दीना इन्दल्लाहिल इस्लाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शब आशूर है। मुख्तसर फ़ज़ाइल को कंप्लीट करते हुए मसाइब से कनेक्ट करने के लिए
कि परवरदिगार आलम ने पहले इरशाद फरमाया कि मैंने इंसान को नहीं खल्क किया, नहीं पैदा किया सिवाय ये कि जिन और इंस को नहीं पैदा किया सिवाय ये कि वो मेरी बंदगी करें, जिससे मुराद मेरी मारिफत है। मारिफत होगी तो उसके साथ इंसान बंदगी गुजार सकेगा। और उस मारिफत का अहम हिस्सा तौहीद जब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक के विलायत अमीरुल मोमिनीन और तमाम इमामों की विलायत को तस्लीम करें। फिर उसके बाद ये तज़किरा कि अल्लाह ने वहीं इंसान को आगाह कर दिया कि खसारे में है हर कोई, कसम खा के वक्त असर की, सिवाय उसके कि जो ईमान ले आए, हक का साथ दे, अमल सालेह करे और सब्र के साथ हक का साथ दे। ये हमने तफसील देख ली कि हक का साथ देना आसान काम नहीं है, जिसकी बेहतरीन मिसाल वाक़या करबला है कि कितने लोगों ने कहा कि हम इमाम हुसैन के साथ हैं, लेकिन कितने लोगों ने वाक़अन साथ दिया, ये अहम था। और जिन्होंने साथ दिया यही एक कंप्लीट इस्लाम है। और इसको पूरा करने के लिए हमने ये देख लिया कि इल्म हासिल करना जरूरी है, जिससे मारिफत मिलेगी। मारिफत मिलेगी तो इंसान समझेगा कि हक का साथ कैसे देना है, और उस हक का साथ देने के लिए उसे हिम्मत और सब्र और करेज मिलेगा कि वो हक का साथ दे सके। एग्जाम्पल्स देख लिए, जो इस तरह देगा तो यही दीन इस्लाम है जिसको अल्लाह ने अपने करीब कहा कि उसका पसंदीदा दीन है। यही एक दीन है, बस दीन इस्लाम है, शुरू से लेके आदम से खातम तक। तो ये जो दीन इस्लाम है इसके तहफ्फुज का नाम करबला है। एक जाविया ये है, एक डायरेक्शन ये है, एक आर्ग्यूमेंट ये है, एक कन्वर्सेशन ये है जो कहा जाता है कि करबला विलायत की जंग है, कि जहां इमाम हुसैन ने वाज़ेह किया कि तुम तस्लीम नहीं करते, लेकिन दूसरी तरफ इमाम हुसैन ने करबला में इस बात की तर्जुमानी की कि इस्लाम समझना हो, जिस इस्लाम को अल्लाह कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, तो उस इस्लाम को डेमोन्स्ट्रेट मैं कर रहा हूं। उस इस्लाम की कोई तर्जुमानी करके तो बताए, फिजिकल एक्शंस के साथ। इस्लाम की फिजिकल एक्शंस के साथ तर्जुमानी न यजीद कर रहा था, न यजीद का लश्कर कर रहा था। और तर्जुमानी इससे नहीं होती कि यजीद का लश्कर नमाज पढ़ रहा है या नहीं है। तर्जुमानी उन वैल्यूज से होती है जिन वैल्यूज को हुसैन ने करके बताया। मिसाल के तौर पे दुनिया ये देख रही थी कि एक तरफ खलीफतुल मुस्लिमीन यजीद बना हुआ है, ना उसे आमाल की कोई फिक्र है, खुलेआम शराब पीता है, ना उसे बदकिरदारी की कोई फिक्र है, वो जिना भी करता है, वो तमाम हराम काम करता है, शराब भी पीता है, अपनी महफिलों में शराब नोशी के साथ साथ म्यूजिक का भी इस्तेमाल करता है, और इसे खुलेआम करता है। और इसके साथ साथ फिर ये वैल्यूज को भी देखा कि ना वो लोगों के जानो माल की इज्जत और एहतराम करता है, ना इंसान की जान की कीमत करता है। दूसरी तरफ इमाम हुसैन ने यह नहीं कहा कि खिलाफत के लिए उठे हैं। इमाम हुसैन ने कहा इन्नी लम अखरुज अशरम वला बतरा। ये इमाम हुसैन का तारीखी खुतबा है जो रोज़ा रसूल पे इमाम हुसैन ने दिया। इमाम हुसैन ने क्या कहा जब मदीने से निकल रहे थे, क्योंकि लोग इमाम हुसैन को सिर्फ इस नजरिए से देख रहे हैं कि आप सब्र करें, आप यजीद के खिलाफ ना उठें। इमाम हुसैन उन्हें समझाना चाहते थे कि जिस इस्लाम को अल्लाह ने कहा है मेरा पसंदीदा दीन इस्लाम है, उस इस्लाम की तर्जुमानी है अगर तुम्हें हक का साथ देना है तो हुसैन के साथ होना है। यह नहीं हो सकता कि तुम खामोश रह जाओ। इसीलिए इमाम हुसैन ने कहा मैं हरगिज नहीं उठ रहा हूं सिवाय इसके कि कोई शर पसंदी हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो। मैं इसीलिए उठ रहा हूं कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करूं, यानी बुराई से रोकूं, अच्छाई की तरफ दावत दूं। और उसके बाद कहा बल्कि अपने नाना के दीन की इस्लाह करूं। मैं इस इस्लाह के लिए उठ रहा हूं। जो दीन मेरे नाना लेके आए थे वो बिल्कुल बदल गया है, ये उसकी वैल्यूज नहीं है।
एक एग्जाम्पल उन वैल्यूज की। हुर ने इमाम हुसैन के लश्कर का रास्ता रोका, बहुत स्ट्रिक्टली रास्ता रोका। इमाम हुसैन के घोड़े पे हाथ रख के मजबूर किया कि आप सिर्फ इराक की तरफ जा सकते हैं, कहीं और नहीं जा सकते। हुर के साथ 2000 का लश्कर था कम से कम, जो रिवायत है। इमाम हुसैन से कहा, इमाम हुसैन ने कहा मैं हिंद की तरफ चला जाऊं, मेरा रास्ता क्यों रोकते हो? कहा नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या यजीद की बैत हो या आप इस तरफ जाएं। इमाम हुसैन ने डेमोन्स्ट्रेट किया इस्लाम के वैल्यूज को। इमाम हुसैन ने देखा कि हुर और उसका लश्कर प्यास से बदहवास है। हुसैन ने कहा भैया अब्बास, ये प्यासे मालूम होते हैं, इन्हें पानी पिला दो। सहरा में, सफर में, रेगिस्तान में, जहां पानी हीरे से ज्यादा कीमती माना जाए, वहां यही तो कहते हैं जो प्यास को जानता है वो वही पानी की अहमियत के साथ उसे सैराब करना भी जानता है। हुसैन ने हुक्म दिया भैया अब्बास, इनको सैराब करो। जानवर तक सैराब किए गए। कुछ लोग इतने प्यासे हैं, कुछ जुमले ऐसे हैं कि प्यास की बदहवासी की वजह से वो अपना जाम संभाल के पी नहीं पा रहे थे, इतने बेचैन थे। इमाम हुसैन ने अपने हाथ से उन्हें पिलाया। शफकत देखें हुसैन की। हुर के दिल में अहले बैत की जो मोहब्बत थी, तो उसने ये सबसे पहले इस्लाम के असल वैल्यूज को देख लिया ना, अब डेमोन्स्ट्रेट, बस यही उसके जहन में आ गया। सबसे पहले तो वहां नमाज जमात हुई, इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ी। जो रास्ता रोक रहा है वही लश्कर हुसैन के साथ नमाज पढ़ रहा है। दुश्मन होने के बावजूद इमाम हुसैन ने बताया कि इस्लाम के वैल्यूज ये है, जिस दीन को अल्लाह ने भेजा है, जिस दीन को मेरे नाना ने मुकम्मल किया है, जैसे मेरे बाबा ने सिफ़ीन में पानी किसी पे बंद नहीं किया, मैं उसी सखी का बेटा हूं। आज इनको सैराब करके बताऊं कि इंसान की जान की कितनी अहमियत है। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी। तो इमाम हुसैन की जो करबला के मैदान की जंग है, वो एक एग्जाम्पल है कि रियल इस्लाम समझ में आए कि किस तरफ है। और दूसरी तरफ वो जो एक क्लेम है इस्लाम का, वो समझ में आए कि जबान से कहना मैं मुसलमान हूं और है, लेकिन करके दिखाना मैं मुसलमान हूं कुछ और है। सलवात पढ़े मोहम्मद नाउ। करबला ने एक बात को क्लियर कर दिया, इंसान को इतना झंझोड़ दिया हुसैन ने कि इसके बाद तुम्हारे पास गुंजाइश नहीं है कि बहाना बना सको। इसके बाद तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है कि विलायत को, हुसैन को, औलाद हुसैन को जिसे अल्लाह ने मुकर्रर किया है, न मानो। कोई उज़्र नहीं बचता। इसीलिए हमारे पास जियारत के जो जुमले हैं सलाम के बाद क्या कहते हैं, उसके ऊपर लानत जिसने इमाम हुसैन को कत्ल किया, लानल्लाहु उम्मतन कतलत का वलअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत में, जिसने सुना और राजी रहा, व ताबिअत, और जिसने इस अम्र की इताअत की, ताबे हो गया किसी भी एतबार से, और वो जो गैर जानिबदार हो गया। जानता है हुसैन ने हल मिन नासिर की आवाज बुलंद की है, हुसैन की हल मिन नासिर की सदा पे लब्बैक कहना वाजिब है, और लब्बैक नहीं किया मतलब हकीकी इस्लाम का साथ नहीं दिया। इसीलिए मुश्किल है। अल्लाह ने कहा व तवासो बिल हक़ व तवासो बिस्सब्र। इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है कि उस लम्हे में इस तरह साथ देना।
एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस एक बात और ज़हमत तमाम। इमाम हुसैन ने कहा जैसे असहाब मुझे मिले ना मेरे नाना को मिले, ना मेरे बाबा को मिले, ना मेरे भैया को मिले। बहुत बड़ा जुमला है, बहुत बड़ा जुमला है, लेकिन गहराई को सोचें भाई। उन असहाब में जो रसूल खुदा के साथ होंगे, जो इमाम अली के साथ होंगे, इन असहाब के आबा व अजदाद भी हैं। ऐसे बड़े बड़े बुजुर्ग बरतर असहाब मौजूद हैं, लेकिन इमाम हुसैन एक क्लियर मैसेज देना चाहते हैं। ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, इसके बहुत से जाविये होंगे। मैं एक नुक्ता पेश करना चाहता हूं। जंग बदर में भी अगर देख लें सिर्फ 313 थे, लेकिन उनकी तवक्कुल का एक डिफरेंट लेवल था। अभी अभी शुरुआत थी, तस्कीन देते जा रहा था परवरदिगार कि मदद आएगी, और उस हिम्मत के साथ वो लड़े, कामयाब हुए। यकीनन अमीरुल मोमिनीन के साथ या जंग ओहद में या दूसरी जंगों में भी यही था। जो भी खुलूस के साथ आया, यकीनन अपनी पूरी जान के साथ कि मैं फिदा कर दूंगा के साथ आया, लेकिन उनका एक हदफ था कि यकीनन यहां जो भी हो वो कामयाबी रसूल के साथ है। इमाम हसन के दौर में भी यही था, और जो ये साथ नहीं दे सके वो साथ छोड़ के चले गए। इस हद तक छोड़ के गए कि पैसों की लालच में। ये मौला अली का दौर तो हम जानते हैं, जितने भी थे खलील, लेकिन इमाम हुसैन के साथ जो असहाब थे उनकी कंडीशन में एक मखसूस बात क्या थी जो इन तीनों के मौके पर नहीं थी? वो ये थी कि बार बार हुसैन कहते थे, मैं जहां जा रहा हूं वहां मौत मेरा पीछा कर रही है। जो जाम शहादत चाहता है मेरे साथ आए, जो माल दौलत खजाना माल गनीमत चाहता है वो मेरा साथ छोड़ के चले। हत्ता के शबे आशूर इमाम हुसैन ने चिराग बुझा के कहा, अगर तुम शर्माते हो मैं चिराग बुझा देता हूं, अंधेरे में मेरा साथ छोड़ के चले जाओ, जो मेरे साथ होगा वो नहीं बचेगा। इमाम हुसैन ने अपने असहाब को क्लियर किया, और हुसैन के साथ जो असहाब बाकी रहे उन्होंने जब चिराग जलाया तो कहा, यब्न रसूलल्लाह, अगर हमारे गले काट दिए जाए, हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, और उसके बाद उन्हें बिखेर दिया जाए, फिर जिंदगी दी जाए, और फिर इसी तरह किया जाए, 1000 मर्तबा ये अमल दोहराया जाए, फिर भी अपनी जान को आप पर से निसार करेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये एक इम्तियाजी फर्क था जो इमाम हुसैन बार बार क्लियर कर रहे थे। जो हुसैन के साथ थे वो प्यासे थे, जो हुसैन के साथ थे वो यकीनन जानते थे कि जीत इसमें नहीं है कि यजीद का लश्कर खत्म हो जाए, जीत इसमें है कि हमारा खून बह जाए। जो हुसैन चाहे वही जीत है। ये बड़ा कमाल। ऐसा हक का साथ देना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आज जमाने के हुसैन के लिए, अपने जमाने के इमाम के लिए अगर हमें तैयार होना हो, तो अब जब हम सोचें तो दिल दहल जाता है, कांपने लगते हैं कि क्या वाकईन हम में कहना बहुत आसान है कि इब्न रसूलुल्लाह, मौला अगर करबला में होता तो मैं आप पर से अपने आप को कुर्बान कर देता, लेकिन मेरे में कितनी हिम्मत है, कितना करेज है, कितनी एबिलिटी है कि मैं डटा रहूं उस मौके पर जहां मेरा इस सख्ती के साथ इम्तिहान लिया जाए, या मेरा इमाम, मेरा जमाने का इमाम मुझे उस काम के लिए कहे जिसे मैं पसंद नहीं करता। ये तैयार। और जो असहाब हुसैन के साथ रह गए ना, बस शबे आशूर है, तो इमाम हुसैन ने शबे आशूर एक रात की मोहलत ली।
ये कह के कि मैं रात इबादतों में गुजारना चाहता। कौन इबादतों में रात गुजारना चाहता है? जिसके सदके में, जिसकी विलायत से हमारी इबादतें कबूल होती है। हम 2 रकत नमाज पढ़ लेते हैं बड़ी मुश्किल से उठ के, तो ऐसे महसूस करते हैं कि हमने एहसान कर दिया, थक जाते हैं। लेकिन जिसकी ऐसी नमाज हो, जो नमाज का मुसल्ला तीरों पर हो, वो एक रात की मोहलत मांग रहा हो, ऐसी खुशू खुशू वाली इबादत जो अल्लाह का मुकर्रब बंदा हो, वो कह रहा है एक रात की और मोहलत दे दो कि इबादतों में बसर करो। और जो हुसैन के साथ थे वो भी इसी तरह के थे। किसी खेमे में कुरान की तिलावत हो रही है, प्यास के आलम में हो रही है। किसी खेमे में तस्बीह और तहलील हो रही है। किसी खेमे में तज़किरा हो रहा है तो जाफर तैयार का। किसी खेमे में तज़किरा हो रहा है तो हैदर कर्रार का। किसी खेमे में तज़किरा हो रहा है तो रसूल खुदा का। किसी खेमे में ज़ैनब अपने बच्चों को बिठा के कह रही हैं, बच्चों कल का दिन अपने मामू पर से जान को फिदा कर देना है। और किसी खेमे में एक झूला है जिसमें 6 महीने का लाल है, और माँ झूला झुलाती जाती है, अपने लाल को देखती है कि ये 3 दिन का भूखा और प्यासा है, क्या इसकी सांस चल रही है या नहीं। अली असगर का ये आलम था। शब आशूर की अजीब सख्ती की तबीयत थी। भूख और प्यास की वजह से छोटा सा बच्चा है, नहीं महसूस हो रहा था कि सांसें भी चल रही है या नहीं। जब रबाब रोने लगी ना तो बीबियां जमा हो गई। पूछा क्या बात है? कहा बीबी नहीं मालूम कि अली असगर की सांस चल रही है या नहीं चल रही। कुछ महसूस नहीं होता कि मेरे बच्चे पर क्या गुजर रही है। वो 3 दिन का भूखा प्यासा है। यकीनन इमाम हुसैन ने कहा होगा कि अभी तो अली असगर की सांस चल रही है, मेरा लाल है, कल इम्तिहान देना है अली असगर को। और वही करबला का मैदान न सिर्फ इस्लाम की तर्जुमानी कर रहा था, इंसानियत की भी तर्जुमानी कर रहा था। तमाम शहीद करबला के जो मैदान में गए हैं, जो सबसे आखिर में गया है उसकी उतनी ज्यादा प्यास है। सबसे छोटा होने के बावजूद अली असगर सबसे आखिर में हुसैन से पहले मैदान में गया है। अंदाजा लगाएं कि अली असगर की प्यास का क्या आलम होगा। और जो हुसैन के साथी थे ना, वो भी मैदान में, उनकी ख्वाहिश ये नहीं थी कि पानी मिल जाए, उनकी ख्वाहिश ये नहीं थी कि कोई और राहत मिल जाए। आपने वाकयात में सुना है ना कि जब मुस्लिम से हबीब ने पूछा था कि मुस्लिम आखिरी वक्त है तुम्हारा, यूं तो मैं भी तुम्हारे पीछे आने वाला हूं, अगर कोई वसीयत हो तो बता दो, ऐसी वसीयत जिस पे अमल कर सकूं। तो मुस्लिम ने ये नहीं कहा कि हबीब मेरे घर वालों को कुछ ये पैगाम पहुंचा देना। मुस्लिम ने ये नहीं कहा कि हबीब मेरे लिए कुछ और एहतमाम कर देना, मेरे लिए एक घूंट पानी ला देना। मुस्लिम ने एक ही जुमला कहा, हबीब इस गरीब हुसैन का ख्याल रखना, हुसैन को तन्हा न छोड़ना। लेकिन वक्त असर के करीब आते आते यही हुसैन थे जिसके साथ कोई मदद करने वाला न था। खेमे से बाहर निकले, दाएं जानिब देखा, बाएं जानिब देखा, अपने हाथ दूसरे हाथ पे मार के कहा, वाह खिल्लता नासिरा, कोई हुसैन की मदद करने वाला नहीं है। आवाज बुलंद की, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुईनिन युईनुना, है कोई जो हरम रसूल की मदद करे, है कोई जो हुसैन की नुसरत के लिए आए। यकीनन शोहदा के लाशें तड़प रहे होंगे ना, लेकिन इन तमाम के दरमियान
बेसाख्ता खेमे से रोने का गुल उठा। इमाम हुसैन आए, कहा बहन ज़ैनब अभी हुसैन जिंदा है, ये रोने का गुल कैसा? बहन ने कहा भैया आपकी आवाज पर अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा लिया है। अरे शायद अली असगर जवाब दे रहा है बाबा सब खत्म हो गए होंगे, अभी अली असगर जिंदा है, आपकी मदद करे। इमाम हुसैन ने कहा लाओ मैं अली असगर को सवाले आपके लिए ले जाता हूँ, मेरा बच्चा बहुत प्यासा है। इंसानियत की तर्जुमानी करना था ना, बताना था कि करबला में जो हुसैन के मुकाबिल हैं वो दिखाई इंसान देते हैं, लेकिन इंसान नुमा हैवान हैं जिनके पास 6 महीने के बच्चे पर रहम करने के लिए तौफीक नहीं है। इमाम हुसैन अली असगर को लिए हुए आए। माँ ने बड़ी हसरत से अली असगर के कुर्ते को तब्दील किया। मेरे मौला मेरा बच्चा पहली दफा मैदान में जा रहा है, सकीना ने देखा होगा शायद अली असगर सैराब होके आ जाए, इंतजार कर रही है ना। अब इमाम हुसैन अली असगर को लेके चले। मकातिल कहते हैं कि अशकिया उमर साद मलून ये तवक्को रख रहे थे कि अब हुसैन का सब कुछ खत्म हो चुका है, अगर हुसैन चाहते हैं कि यहाँ बैत कर लें, मामला खत्म कर दें तो देखते हैं, वरना क्या मालूम कि क्या बात हो। क्योंकि इमाम हुसैन ऐसे आ रहे थे कि अबा के दामन में या कुरान हो या कुरान नातिक मालूम नहीं। इमाम हुसैन आहिस्ता आहिस्ता आए। वो करबला की धूप, वो गर्मी और तपिश, इमाम हुसैन एक बुलंद मकाम पर आए और उसके बाद अबा के पर्दे को हटाया तो देखा एक फूल सा चेहरा था। हुसैन ने अली असगर को बुलंद किया और कहा ए फौजे अशकिया तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, तुम्हारी मंतिक में तुम्हारे हिसाब से मैं कसूरवार हूं, तो ये 6 महीने का बच्चा है, इसकी क्या गलती है, इसे थोड़ा सा पानी दे दो। कोई जवाब नहीं मिला। इमाम हुसैन ने कहा अच्छा तुम मुझ पे एतमाद नहीं करते, तुम समझते हो कि इस बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूंगा, तो लो तुम खुद ही आके इसे पानी पिला दो। इमाम हुसैन ने कहा मैं अली असगर को लिटाए देता हूँ। जब भी कुछ जवाब न मिला ना, इमाम हुसैन ने कहा मेरे लाल अली असगर तेरे बाबा ने हुज्जत तमाम कर दी, तू भी अपनी हुज्जत तमाम कर दे। अली असगर ने सूखी ज़बान सूखे होठों पर फिराई, ये बता दिया कि मैं प्यासा हूँ। अगर फौज अशकिया में कोई साहिब औलाद होता, अगर कोई इंसान होता तो अली असगर को पानी दे देता, मगर हाय उमर साद ने कहा हुर्मला कलामल हुसैन, हुर्मला हुसैन के कलाम को कता कर दे। हुर्मला का तीर चला, हुसैन देखते रहे, वो फूल सा बच्चा इमाम हुसैन के हाथों पर शहीद हो गया। इमाम हुसैन की चिल्लों में खून आ गया। इमाम हुसैन ने खून को चेहरे पे मल लिया ना। अब किस तरह जाके सकीना को दिखाए कि भाई ऐसा सैराब हुआ है कि फिर कभी पानी नहीं मांगेगा। बस एक जुमला कह के जहमत तमाम करूं, जब मुख्तार ने इंतकाम लिया है ना तो एक एक से पूछा है कि वाक़या करबला में क्या किया। तो जहां हुर्मला से जब पूछा ना तो उसने कहा कि मैंने करबला में 7 अहम तीर थे जो मैंने चलाए हैं, और उन तीरों का जो हिसाब हुर्मला ने दिया, बड़ा शकी तरीन तीरंदाज था, इतना शकी तरीन, इतना ताकतवर तीरंदाज था कि इससे कहा जाता था कि ये सहशोभा ऐसे तीर चलाए कि जैसे 3 या 7 लोहे की चादरों को इसका तीर फाड़ के निकल जाए, इतनी बेहतरीन इसकी तीरंदाजी थी। तो इससे जब पूछा ना कि तूने करबला में क्या किया, तो उसने अपने तीरों के मरहले को बताया। तो उसने कहा मैंने एक तीर उस वक्त चलाया जब अब्बास मश्क सकीना लेके जा रहे थे, किसी में हिम्मत न थी कि अब्बास को रोक सके। मैंने मश्क का निशाना लिया, तीर चलाया, जब मश्क छिद गई अब्बास फिर खेमों की तरफ नहीं गए,
उसके बाद कहा मैंने एक तीर उस वक्त चलाया जब हुसैन नरगे आदा में थे, न घोड़े पर लड़ रहे थे न जमीन पाते थे। मैंने एक तीर ऐसा चलाया जो हुसैन के सीने पर जाके पैवस्त हुआ। उसके बाद कहा कि मैंने 3 तीर 4 तीर एक और मकाम पर चलाए हैं, अमीर न पूछ तो बेहतर है। मुख्तार ने कहा नहीं बता दे। हुरमुला ने कहा मैंने तीर उस वक्त चलाया जब हुसैन अपने शशमाहे को लेके आए थे, तो मैंने तीर चलाया, लेकिन मैं जब पहला तीर चलाया तो मेरा निशाना छूट गया। मैंने दूसरा तीर चलाया, मेरा निशाना छूट गया। मैंने तीसरा तीर चलाया, मेरा निशाना छूट गया। तो मुझे उमर साद और शिमर ने कहा है हुरमुला तुझे क्या हो गया है कि तेरा निशाना चूक जाए। हुरमुला कहता है मैंने कहा कि मैं जो देख रहा हूं तुम नहीं देखते। जब भी तीर चलाने जाता हूं ऐसे महसूस होता है सामने एक बीबी है और कह रही है हुरमुला मेरे अली असगर ने तेरा क्या बिगाड़ा है। मैंने 3 बाल वाला तीर लिया, वो तीर जिसमें 3 नोकें होती है, जो ऊंट को ज़िबा करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो तीर अली असगर की गर्दन पर लगा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़न्ब क़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। बेहतरीन दुआ का वक्त है जब मसाइब पे आंसू बहाए जाएं। शीर खार के मसाइब वो मसाइब हैं जो दुआ की कबूलियत की ज़मानत है। परवरदिगारा मसाइब अली असगर का वास्ता, परवरदिगारा अली असगर के छिदे हुए हुलकूम का वास्ता। हमारी दुआओं में अव्वलीन दुआ यही है कि इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगारा इमाम के हम गम को बरतरफ फरमा। इमाम के ज़हूर के लिए ज़मीन को हमवार फरमा। बारिला हमारे इमाम को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा। हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी तौफीक़ात में इजाफा फरमा। हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। जिन्हें बख्श दिया है जवार अइम्मा में जगह इनायत फरमा। परवरदिगारा तमाम हाज़रीन तमाम मोमिनीन के दिली हवाइज और मक़ासिद को पूरा फरमा। अज़ादारी और अज़ादारों का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। जहाँ जहाँ मोमिन परेशान उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा इस कोरोना वायरस की वजह से सारी दुनिया में लोग परेशान हैं, इसका जल्द ख़ात्मा फरमा। वारेला हमें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। इस घर पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। आफाती अर्ज़ी और समावी से महफूज रह। परवरदिगारा हमें मौला के नासिरों गुलामों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा से तमाम हाज़रीन के रिश्तेदार मरहुमीन जुमला मरहूम मोमिनीन व मोमिनात के लिए बरकत ईसाल फरमाए। बिलखुसूस